Okay, so I hope this screen is visible to all. Just 1 minute. Okay, this is not the lecture number 5A. So now our next topic is DUIS. Okay, and in that today we'll first go through the first rule. Okay, DUIS rule 1. Okay, so what is the meaning of DUIS? Can anyone tell me what is the meaning of DUIS? I already told you in my first lecture. Okay, this is one of the important topic. Again, what is the aim or what is the purpose of this unit? Okay, so using this unit you can solve the different integrations or different integrals. Okay, those are difficult to solve by using our regular approach. जो आपने 11th 12th का जो आपका approach था substitution से by part से या एडजस्टमेंट करके जो भी जितने भी सारे रूल्स आपने लर्न किए थे 11th एंड 12th में टू सॉल्व दैट इंटीग्रल. ओके, सो विदाउट यूजिंग दोज रूल्स और कुछ ऐसे इंटीग्रेशन आ जाता है जिसको आपके 11th 12th का जो नॉलेज था उससे सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, सो दोज इंटीग्रेशंस कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस रूल्स. ओके, सो फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड द गामा फंक्शन. This is one of the specific integral. Next is the beta function. Okay, it is also one of the specific integral. Then third is reduction formulae, as this topic is for self study. So in one lecture I have just given the idea about that topic and how to find all those integrations using calculator also. So please go through that recording also. And now the fourth topic, this is you can say the fourth topic, which is the DUIS. Okay, that is differentiation under integral sign. इसका simple meaning क्या है? DUIS का simple meaning क्या है? Now you can take the derivative of integral function. So if this is my integral function, ठीक है, so this integral function is denoted by I of what? Can anyone tell me? If I consider integral from 0 to a x square dx, okay, so this is my function now. This is the integral function. So can you tell me what is the variable of this integral function? In which variable you will get this value? X. अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हो, लेट मी राइट दिस प्रॉपरली. दिस लिमिट्स आर फ्रॉम से 0 to a. सो एट द एंड आपको आंसर कौन से वेरिएबल में मिलेगा? ए में मिलेगा. सो दिस इज द इंटीग्रल फंक्शन ऑफ वेरिएबल ए. दिस इज द इंटीग्रल फंक्शन ऑफ वेरिएबल ए. इतना आप याद रखो, सारे डेफिनेट इंटीग्रल ही है. वी आर नॉट वर्किंग विद इनडेफिनेट इंटीग्रल. सो इन ऑल डेफिनेट इंटीग्रल, ओके, ये जो dx dy जो आता है, ओके, ये एट द एंड आपका इलिमिनेट होने ही वाला है. ओके, सो यू विल गेट आंसर इन अ वेरिएबल अदर दैन दिस x. जो भी आपको आंसर मिलेगा वो अदर दैन x में ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, let me give you one more example. If I consider x to y, no sorry, let me work with constant only. a to b है ना, x square dx सेम. सो इस केस में आपको आंसर कौन से वेरिएबल में मिलेगा? इन दिस केस a comma. ठीक है, so you can denote this by I of a also, you can denote this by I of b also, or you can denote this by I of a comma b. It depend on you कि आपको कौन से वेरिएबल पे वर्क करना है. If you want to work on a, you can denote it by I of a. If you want to work on b, you can denote it by I of b, or you can denote it by I of a comma b. कौन से वेरिएबल का फंक्शन है, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम या क्या आपको कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, सो दिस इज वन पार्ट. So all these integrations are actually of functions. You can denote this function by either say I of a, I of b. It depend on the variable या जो constant limits of integration जो यहाँ पे आ रहे उस पर वो डिपेंड रहता है. And now what is the aim of this topic? यहाँ पे आपको करना क्या है? In this DUIS rule, sorry, in this DUIS rule, basically we have to find derivative of this I with respect to a. ये आप करने वाले यूजिंग DUIS. इज दिस क्लियर? करना क्या इसमें तो क्लियर हो गया सबको. DUIS में क्या करना है? एक इंटीग्रल फंक्शन गिवन होगा, उस इंटीग्रल फंक्शन का आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. इंटीग्रल फंक्शन का डेरिवेटिव सिंपली. ठीक है, इज दिस क्लियर? ये पार्ट क्लियर हो गया सबको?
क्या करना है तो Yes, समझ sir. में आ रहा है कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस टॉपिक। डिवाइस में आप क्या कर रहे हो, इतना तो आपको पता होना चाहिए पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, कि डिवाइस में क्या करना है, हमें इंटीग्रल फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, या सिंपली जो आपका इंटीग्रेशन है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये अभी तक आपने नहीं लर्न किया, दिस पार्ट इज नॉट देयर इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। ओके okay. So for that a specific rule is there, that is nothing but DOAS rule 1, and there is one more rule for the variable limits that I will see in the next lecture. Okay, तो आप मुझे पहले ये बोलो in general or in from the knowledge of your 11th and 12th, how you find derivative of this integral function. अगर आपको एज्यूम करो कि आपको DOAS रूल नहीं पता है, बट आपको इस इंटीग्रल फंक्शन का या आपको di/dA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे करोगे? Without using DOAS rule, how you find value of this integral, sorry, derivative of this integral? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मुझे इस इंटीग्रल फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब अभी आप एज्यूम करो वी डोंट नो व्हाट इज दैट DOAS रूल। DOAS रूल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट अगर सपोज आपको पता ही नहीं था कि DOAS रूल क्या होता है, ठीक है। सो इन दैट केस अगर मैं आपको ये पूछता हूँ कि कैलकुलेट di/dA, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इफ यू डोंट नो द DOAS रूल and if I tell you find the value of di/dA, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? What is your approach to find derivative of this integral function? Yes, आप कैसे करोगे? Take derivative on both sides. नहीं, ठीक है। First तो integration. हाँ ठीक है, मैं आपको पहले लेता हूँ। चलो सब आपने बस एक इनिशियल स्टेप बोलिए। हाँ, di/dA to take derivative upon both side, but you cannot proceed from this step. इसके आगे आपको नहीं पता, ओके। ये आपने कहीं पे फर्स्ट इंटीग्रल फार्मूला ऐसा कुछ कहीं पे ना कहीं पे देखा होगा, बट वही आपको एज अ DOAS रूल देखना है इसमें। हाँ, बट इसके आगे आपको नहीं पता है, ओके। इसके आगे आपको नहीं पता है, ओके। इसके आगे ही तो DOAS रूल आता है। हाँ, बट मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, आप ऐसे एज्यूम करो, मतलब मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन भी नहीं किया कि DOAS रूल क्या होता है, ओके। अगर मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ कि टेल मी द वैल्यू ऑफ di/dA, मुझे कैलकुलेट करके दो, तो आप कैसे करोगे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इंटीग्रेट करेंगे सर पहले और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। वेरी गुड। आपका अप्रोच क्या होगा कि आप क्या करोगे? पहले लेट अस फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ I of A, करेक्ट है ना। लेट अस फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ I of A। पहले आप क्या करो, पहले ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A कैलकुलेट करो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? वी नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, टेक द इंटीग्रेशन x³ 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to A, ठीक है। देन I of A इज इक्वल टू ये क्या आएगा, a³ 3 है ना, -0, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, दैट विल बी a²। ये आपका आंसर होगा, ओके। सो व्हाट इज द ड्रॉबैक विद दिस मेथड? क्योंकि आपको पहले मुझे ये क्वेश्चन आंसर करना है कि व्हाई वी नीड दिस DOAS रूल, क्या जरूरत थी? अगर आप इंटीग्रल सॉल्व करके फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। अगर आपको इंटीग्रल फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो सबसे सिंपल वे क्या है, पहले इंटीग्रल सॉल्व करो देन टेक द डेरिवेटिव। इट इज दिस अप्रोच इज ऑलवेज देयर विद यू, ये आपके साथ पहले से ही था ये अप्रोच, इंटीग्रल सॉल्व करो देन यू टेक द डेरिवेटिव, ओके। बट इसमें ड्रॉबैक क्या आ रहा है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, ओके। फॉर दिस मेथड in every for every example we need to first solve this integral, ओके। इसमें ड्रॉबैक क्या है कि आपको इस अप्रोच में पहले आपको वो इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ता है, एंड आपको पता ही है इंटीग्रल सॉल्व करना इज नॉट अ ट्रिवियल जॉब फॉर एवरी इंटीग्रल, ठीक है। क्योंकि उसमें उसके लिए तो अभी आप मेथड्स लर्न कर रहे हो ना, because in general we cannot solve any given integral. There are some specific rules, specific cases are there under which only we can, or specific restrictions are there under which only we can solve that integral. इसलिए आप ये यूनिट भी लर्न करो, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक और एरिया आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो द पर्पज ऑफ दिस टॉपिक इज व्हाट, आप इंटीग्रल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट आपका मतलब व्हाट इज योर सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन क्या होगा कि इंटीग्रल सॉल्व करो देन टेक द डेरिवेटिव। बट इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, फॉर दिस मेथड फॉर एवरी एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सॉल्व दैट इंटीग्रल। तो अभी मैं आपको एक ऐसा रिजल्ट देने वाला हूँ, ओके। इन दैट रिजल्ट विदाउट सॉल्विंग दिस इंटीग्रल, अभी आप बोलोगे कि उस रिजल्ट में भी सर इंटीग्रल आ रहा है, ओके।
अभी मतलब प्रैक्टिकली अगर आप वो रूल देखोगे ना तो उसमें भी एक थोड़ा बहुत इंटीग्रल आ रहा है, बट वो इंटीग्रल आप ट्रिवल में मतलब ट्रिवल इंटीग्रल में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इन जनरल इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, विदाउट सॉल्विंग दिस गिवन इंटीग्रल यू कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस I with respect to a. So there is alternative approach, ओके जिसमें भी थोड़ा बहुत इंटीग्रल आता ही है, ओके बट वो इंटीग्रल ट्रिवियल हो जाएगा, आपको मैं दिखाने वाला हूँ डायरेक्टली थ्रू सम एग्जांपल्स, बट वो इंटीग्रल ट्रिवियल हो जाएगा एंड यूजिंग दैट और फ्रॉम दैट यू विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू a. ये इसका एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। डिवाइस में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, मतलब इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस गिवन इंटीग्रल, okay, you can directly find the value of I with respect to a or value of derivative of the integral function. अब ये सब कुछ कैसे होगा, let us मतलब अभी आप देखो जो ये आपका रेगुलर अप्रोच है, 12th का अप्रोच, यहाँ से आंसर आ रहा है मेरा a स्क्वायर, तो डिवाइस रूल से भी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना उस केस में भी मुझे आंसर क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर, ओके डायरेक्ट करते हो इंटीग्रल सॉल्व करके तो भी आंसर ए स्क्वायर आना चाहिए, डिवाइस रूल से भी जाते हो तो भी आपका आंसर ए स्क्वायर आना चाहिए। सो आई विल शो यू दिस पार्ट। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिवाइस रूल, ओके डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। सो इन कैलकुलस लेबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन फॉर एन इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। हर एक इंटीग्रेशन, कोई भी अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो, ओके इट इज़ एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। हियर वी आर वर्किंग विद ओनली दिस टू वेरिएबल इंटीग्रल फंक्शन, ओके एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा, या विल टेक वन मोर वेरिएबल आई ऑफ अल्फा, आई ऑफ बीटा, ऐसे भी आप जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो हियर या सो एज दिस इंटीग्रल, ओके आप नोटेशन देखो क्या मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो हियर एज दिस इंटीग्रल इज दिस इंटीग्रल इज देयर विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा डी एक्स, ये जो इंटीग्रल ये यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स जा रहा है, आप एज्यूम करो कि अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हो, सॉल्व होने के बाद इसमें कौन कौन से वेरिएबल आने वाले हैं, इसमें कौन कौन से वेरिएबल आने वाले हैं, इफ यू सॉल्व दिस इंटीग्रल तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल आने वाले हैं, A, B and अल्फा। ये सबको इमेजिन हो रहा है, ये सबको इमेजिन हो रहा है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो इसमें ए बी एंड अल्फा आने वाला है, ओके यहाँ पे मतलब मुझे एक्चुअली यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, इफ यू सॉल्व दिस इंटीग्रल इज फ्री फ्रॉम एक्स, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो विद रिस्पेक्ट टू जो पार्ट होता है ना वो वेरिएबल कभी नहीं आने वाला उस इंटीग्रल में। सो इफ यू सॉल्व दिस इंटीग्रल इज फ्री फ्रॉम एक्स। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ए बी एंड अल्फा। बट आप इसमें से कौन सा वेरिएबल चूज करने वाले हो, लेट अस चूज द अल्फा। Again it depend on you. You can consider it as I of A, you can consider it as I of B, you can consider it as I of alpha. किसी एक वेरिएबल में लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। So here if I denote this value by I of alpha, अभी अल्फा आपको क्या लेना समझ में आ रहा है, this alpha is what, okay this alpha is the value other than limits and x. So delete this x, delete this limits, जो भी रिमेनिंग वेरिएबल होगा वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। मैं आपको प्रॉब्लम में भी एक्सप्लेन करता हूँ। So I of alpha या अपने अल्फा कैसे सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करना है, मैं आपको यहाँ पर रेडीमेड नहीं देने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल या ठीक है एग्जाम्पल के केस में डायरेक्टली कर लेते हैं इतना कुछ, क्योंकि इमीडिएटली एग्जाम्पल आने वाला है, ठीक है। तो हाउ यू आइडेंटिफाई दिस अल्फा, अल्फा इज द वेरिएबल अदर देन लिमिट्स एंड दिस डी एक्स, ठीक है। तो जो भी अदर वेरिएबल होगा उससे आपको इस इंटीग्रल को डिनोट करना है। नाउ हाउ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, how you find the derivative of I with respect to alpha, this is the formula. So di by d alpha, let me write here, di by d alpha is equal to, so taking the derivative on both sides, that gives me derivative of this integral function है ना, d by d alpha of integration from a to b f of x comma alpha dx, and इसका फॉर्मूला क्या है, ये एक्चुअली आपका फॉर्मूला है। नाउ दिस डिवाइस रूल 1 इज एक्चुअली अ पर्टिकुलर केस, एक पर्टिकुलर केस है। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला देने वाला, ओके मतलब यहाँ पे जो कंडीशन में ले रहा हूँ ना, व्हाट इज द कंडीशन, दिस लिमिट्स आर कांस्टेंट, विद दिस कंडीशन आई एम गोइंग, दिस लिमिट्स आर कांस्टेंट, ये दोनों लिमिट्स आपके कांस्टेंट है। तो जब वेरिएबल लिमिट्स आते हैं ना तभी आपको ये वेरिएबल का पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो राइट नाउ इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस लिमिट, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है तो
क्योंकि ये फंक्शन है, तो फंक्शन मतलब वेरिएबल आना चाहिए वहाँ पे, एक्स वाई जेड ऐसे नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ सो आप ये दोनों भी डिलीट कर रहे हो, आप एक्स भी डिलीट कर रहे हो, एंड देन दिस अल्फा बिकम योर वेरिएबल। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आई ऑफ अल्फा, ओके। सो दिस फर्स्ट रिजल्ट इज ओनली फॉर इंटीग्रल हुज लिमिट्स आर कांस्टेंट। ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट है। दिस फर्स्ट रिजल्ट इज ओनली फॉर इंटीग्रल हुज लिमिट्स आर कांस्टेंट, ओके। एंड नाउ व्हाट इज दैट रिजल्ट? रिजल्ट बहुत सिंपल है, ओके। रिजल्ट में क्या है, आप बस क्या करो, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल फंक्शन is equal to integral of partial derivative of this function with respect to alpha, okay। तो अभी आप ये पार्ट सॉल्व करो, जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल, ये इतना डिफिकल्ट नहीं जाता, जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल, दैट गिव्स यू द डेरिवेटिव ऑफ i with respect to alpha, that gives you the derivative of i with respect to alpha, okay। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास di by d अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल। अभी मैंने आपको वही बोला कि इसमें भी एक इंटीग्रल आ जाता है फिर से, बट वो इंटीग्रल इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ओके। वो ट्रिवियल में ही कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके 11-12 के जो इंटीग्रेशन है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट कैन बी इजीली सॉल्व, ठीक है, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, लेट मी टेक वन एग्जाम्पल डायरेक्टली, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप एग्जाम्पल देते हो तभी क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, ओके। एंड वाई वी लर्न दिस टॉपिक, क्योंकि यूजिंग दिस टॉपिक आप लेट मी अगेन कम टू दिस पॉइंट, हाँ। सो यूजिंग दिस टॉपिक यू कैन फाइंड, इसके दो एप्लीकेशन आप बोल सकते हो। वन एप्लीकेशन यू कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल फंक्शन, and there is one more application of this topic is what you can also evaluate that integral। अभी मुझे बस ये सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट का तो हो गया, फॉर्मूला क्लियरली समझ में आ रहा है, फॉर्मूला ट्रिवियल है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल फंक्शन इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे पिक कर रहे हैं उससे आपको डिफरेंशिएट करना है। सो इट इज व्हाट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक और बार एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है, हाँ। तो ये तो हो गया, डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है, आई थिंक ये तो सबको समझ में आ गया है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद हाउ यू फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू और हाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, मतलब i की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको यहाँ, दैट इज माय क्वेश्चन। i की वैल्यू कैलकुलेट करनी मतलब इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो हाउ यू एक्चुअली फाइंड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल फंक्शन यूजिंग दिस फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, di by d alpha is equal to, okay, from this first step here you will get di by d alpha is equal to some value in terms of what, alpha ना। तो let us take sin alpha, मैं आपको एक रैंडम दे रहा हूँ, सपोज आपने ये सॉल्व किया और di by d alpha इक्वल टू साइन अल्फा आपको मिल गया। अभी आपका मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि इस स्टेप के बाद आप i की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। i की वैल्यू कैलकुलेट करना इज नथिंग बट आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ यू एक्चुअली फाइंड वैल्यू ऑफ i फ्रॉम दिस इक्वेशन, व्हाट इज दिस, इंटीग्रेट कर रहा है डी अल्फा वाला पॉलीगॉन जैसे। हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है ना। डेरिवेटिव कैलकुलेट करना मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आपने करेक्ट बोला, कैसे सॉल्व करना है वो आपने एक्सप्लेन किया मुझे, ठीक है। सो इफ यू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ i एंड दैट i इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 100% फ्रॉम दिस ओरल डिस्कशन, ओके। क्या क्या करना है ना उतना भी आपको समझ में आता है, मैं आपको एग्जांपल से सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ओके। सो नाउ आई थिंक लेट अस टेक दैट एग्जांपल डायरेक्टली। अभी आप क्वेश्चन देखो क्या है, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। अभी मैं आपको सारे टॉपिक्स, ओके, मे बी फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए टाइम जाएगा, बट आपको अभी मैं सारे टॉपिक लिंक करके देने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि डिवाइस का भी क्या स्पेशल रोल होगा, है ना, ओके। सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, गामा से स्टार्ट किया था, हाँ। अभी माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कैन वी सॉल्व दिस गिवन इंटीग्रल यूजिंग गामा फंक्शन, बोलो, कैन वी सॉल्व
दिस गिवन इंटीग्रल यूजिंग गामा फंक्शन। Yes. सो दैट वी नीड टू चेक, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म तो आ रहा है, ठीक है, तो चांसेस है, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, चांसेस है वहाँ पे। इसको कंबाइन करो, ओके, एंड फिर चेक करो कि ये एक्चुअली सॉल्व हो रहा है कि नहीं। सो चांसेस आर देयर, ओके, चांसेस आर देयर। नेक्स्ट इज कैन वी सॉल्व यूजिंग बीटा फंक्शन? बीटा से होगा? No, no. ऐसे तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस अप्रोच इज फेयर। कैन वी सॉल्व यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूले? रिडक्शन का तो सबसे सिंपल है, ओके, क्या है रिडक्शन में? साइन रेज टू, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के आ जाते हैं, ऑल दी फंक्शंस आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या कहीं पे? No, sir. नहीं है, No, sir. फेल हो जाएगा। तो अभी थोड़े बहुत चांसेस है गामा फंक्शन के, या तो फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमने इंट्रोड्यूस किया डीवाइस रूल, ठीक है। हाँ, अभी आप गामा फंक्शन का मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। गामा फंक्शन से ये डिफिकल्ट हो जाएगा या इट मे गेट सॉल्व, ओके, मैंने चेक नहीं किया, ओके, बट अगर ये डिवाइस के अंडर प्रॉब्लम है, इट मीन्स मे बी इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग गामा फंक्शन, तो आगे कुछ ऐसा कैलकुलेशन हो जाएगा जिसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा या वो लेंदी होगा, ओके। सो दैट वी नीड टू चेक प्रॉपर, ठीक है। हाँ, तो अभी तो आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। जैसे आपने देख के ही बोला था कि गामा फंक्शन से मे भी होगा, बीटा से भी मतलब नहीं होगा, रिडक्शन फॉर्मूले से भी नहीं होगा, क्योंकि इनमें इन फर्स्ट 3 केसेस में देयर आर स्पेसिफिक टाइप। जो 5th भी आने वाला है उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप है, इसमें भी एरर फंक्शन, दिस इज द लास्ट टॉपिक, इसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप है, ठीक है। बट दिस इज द ओनली टॉपिक, ओके, वेयर द इंटीग्रेशन फॉर्म इज नॉट फिक्स। मतलब आपको क्या देखना होगा, अगर ये सारे रूल्स फेल हो जाते हैं ना 1 2 3 एंड 5, तभी आपको डिवाइस से सॉल्व करना है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन पार्ट, क्यों आपको डिवाइस से जाना है। अगर सारे रूल्स अपने फेल हो रहे हैं ना, उसी केस में आपको डिवाइस से ट्राई करना है, ठीक है, कि कैन वी, मतलब ये आपका डिसीजन होगा कि चलो लेट अस सॉल्व विद द डिवाइस रूल, ओके। हाँ, अभी ये तो क्लियर हो गया, ओके। गामा फंक्शन का हमें देखना होगा, सो दैट आई विल कीप इट ऑन होल्ड। लेट अस फर्स्ट ट्राई विद द डिवाइस रूल, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बस ये फिक्स किया कि ये क्वेश्चन मुझे डिवाइस मेथड से सॉल्व करना है, ओके। अभी डिवाइस मेथड से सॉल्व करना है, तो पहले आपको ये पता है कि डिवाइस मेथड में आप क्या करते हो। डिवाइस मेथड में या डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के मेथड में आप इंटीग्रल फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो। This is the definition of device rule. You can find the derivative of integral function. Derivative of integral function. Okay. तो पहले हम क्या करते हैं? Let us first calculate derivative of this integral function. ठीक है. तो अब ये कौन से वेरिएबल का इंटीग्रल फंक्शन है ना, वो पहले मुझे डिफाइन करना होगा. So let I of what is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus x upon x 1 minus e raised to minus x, a is the constant which is given dx. अभी आपसे मुझे आंसर चाहिए, ये जो इंटीग्रल फंक्शन है ये कौन से वेरिएबल का इंटीग्रल फंक्शन है? X, sir, X. Okay, I got one answer which is x. ये तो समझ में आ रहा है. मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, एज्यूम करो कि ये आपने सॉल्व किया इंटीग्रल, आप एज्यूम करो कि ये इंटीग्रल आपने सॉल्व किया, आपका जो लास्ट आंसर है वो कौन से वेरिएबल में जाएगा, वो वेरिएबल ही मुझे यहाँ पे चाहिए. बोलो बोलो. आप एज्यूम करो कि ये इंटीग्रल आपने सॉल्व किया, तो जो भी आपका लास्ट आंसर होगा वो कौन से वेरिएबल में जाएगा. दैट इज व्हाट आई वांट. सो कैन इट बी आई ऑफ एक्स, या आई ऑफ एक्स कभी आने वाला है क्या? No. हाँ, क्योंकि अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हो ना, तो ये सॉल्व होके ब्रैकेट में जाएगा, कुछ तो एक्स में ही होगा ये, ठीक है, सॉल्व होके एक्स में ही होगा. पर उसके बाद आप लिमिट्स पुट करने वाले हो ना, एक्स में होगा और एक और वेरिएबल है ए में भी होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ए एंड एक्स में होगा. उसके बाद आप एक्स को रिप्लेस करने वाले हो इन्फिनिटी एंड जीरो से. मैं करेक्ट? Yes, sir. है ना. उसके बाद आप एक्स को रिप्लेस करने वाले हो, अपर लिमिट इज इन्फिनिटी, लोअर लिमिट इज जीरो. तो सो जो फाइनल आंसर होगा वो कौन से वेरिएबल में जाएगा? A0. ए वेरिएबल में जाएगा. ठीक है, आपको वेरिएबल चाहिए. आई डोंट वांट द कांस्टेंट. जीरो, आई ऑफ जीरो से डिनोट करके क्या फायदा होगा मुझे? आई कैनॉट डिफरेंशिएट दिस, सो आई कांट टेक केयर आई ऑफ जीरो, आई कांट टेक केयर आई ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि वो वेरिएबल है ही नहीं ना, तो मैं डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाऊंगा. डिफरेंशिएट करने के लिए वो वेरिएबल चाहिए. इट इज नॉट अ फिक्स वैल्यू. ठीक है,
सो ये जो लास्ट आंसर होगा, ये लास्ट आंसर आपका ए वेरिएबल में जाने वाला है। अभी जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट टेल। इज दिस क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? मैं आपको इसके लिए एक सिंपल ट्रिक देता हूँ। हमेशा पहले क्या चेक करो, ये इंटीग्रेशन जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो अदर देन एक्स कौन सा वेरिएबल है वो आपको यहाँ पे लिखना है। दिस इज द सिंपल ट्रिक, ठीक है। अदर देन एक्स, अगर ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, क्योंकि आगे जाके वो टी में भी होगा, सो अदर देन टी जो भी वेरिएबल वहाँ पे प्रेजेंट होगा ना, वो आपको यहाँ पे लिखना है। दिस इज दिस सिंपलेस्ट ट्रिक। बट इस ट्रिक के पीछे रीजन क्या है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि अगर आप x से इंटीग्रेट करते हो तो x वेरिएबल आपका इन्फिनिटी एंड जीरो से रिप्लेस होगा। सो फाइनली आपको a में ही आंसर मिलेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू डिनोट दिस इंटीग्रल वैल्यू बाय i ऑफ a। एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस पार्ट? मैं आपको ट्रिक मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग से भी आपको समझ में आएगा। ये मैंने कैसे सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट वेरिएबल अदर देन x, क्योंकि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जा रहा है, तो ये x को छोड़ के जो भी वेरिएबल होगा वही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, मतलब हियर वी हैव डिनोटेड दिस गिवन इंटीग्रल बाय i ऑफ a, ठीक है। इंटीग्रल फंक्शन को हमने डिनोट किया। अभी डिवाइस रूल अप्लाई करते हैं। सो बाय डिवाइस रूल 1 क्या होता है? डिवाइस रूल, आप इस इंटीग्रल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो क्या है फॉर्मूला? मैंने आपको बोला ओरली याद रखो, क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? हाँ, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए हो रहा है। सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए ऑफ दिस फंक्शन, e raised to minus x upon x 1 minus e raised to minus ax कंप्लीट। बाकी चीज़ें एज इट इज। मैंने बस क्या किया, फंक्शन को रिप्लेस किया। ये था मेरा फंक्शन, फंक्शन को मैंने रिप्लेस किया बाय देयर पार्शियल डेरिवेटिव। जस्ट रिप्लेस फंक्शन बाय देयर पार्शियल डेरिवेटिव, रिमेनिंग थिंग्स आर एज इट इज। नाउ जस्ट कंप्लीट दिस पार्शियल डेरिवेटिव। सो इट इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। बोलो, जब आप ए से डिफरेंशिएट करते हो तो कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट लेना होगा? x, है ना। तो x कांस्टेंट है, मतलब e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। एंड 1 का डेरिवेटिव क्या है? 0 माइनस e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? e रेज टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट? माइनस साइन, माइनस 1 a या x? a या x? ए सर a एक्स कांस्टेंट है, क्योंकि आप जब a से डिफरेंशिएट करते हो तब आपका x कांस्टेंट है ना। तो ये रोल मतलब इसमें ना मिस्टेक यहीं पे होगी। आप जब a से डिफरेंशिएट करते हो तो आपको पता है ये तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म। सो माइनस ए एक्स का विद रिस्पेक्ट टू a डेरिवेटिव वो आने वाला है माइनस एक्स, और इसमें आप 110% मिस्टेक करोगे अगर आपको ये वेरिएबल प्रॉपर नहीं समझ में आ रहे तो जब आप a से डिफरेंशिएट करते हो तब ये मिलेगा, जब आप x से डिफरेंशिएट करते हो तब यहाँ पे माइनस से आ जाएगा। रिमेंबर दिस रोल। एक ही क्वेश्चन में एक बार मैं x को कांस्टेंट ट्रीट करने वाला हूँ और एक बार मैं वेरिएबल ट्रीट करने वाला हूँ, तो इसलिए ये स्विच थोड़ा आपको डिफिकल्ट जाएगा फॉर फर्स्ट फ्यू एग्जांपल्स। ओके, नाउ लेट मी राइट इट प्रॉपरली। सो डी बाय डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या मिलेगा मुझे? x e रेज टू माइनस ए एक्स, ये डी एक्स एज इट इज़। मेरा x कैंसिल होगा, दिस आई कैन राइट इट एज 0 टू इन्फिनिटी। ये मैं अगर बेस सेम है तो पावर की मैं एडिशन कर लेता हूँ। सो इफ आई टेक माइनस कॉमन, व्हाट इज इन द ब्रैकेट? क्या मिलेगा ब्रैकेट में? a प्लस 1 एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी आई बाय डी ए। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? ये दिस इज द डिवाइस। ये जो यहाँ तक जो भी कैलकुलेशन क्या है ये मुझे डिवाइस से मिला है। इसके आगे हमारा अप्रोच अलग है, ठीक है। इज दिस क्लियर अप टू दिस पार्ट? मैंने बस क्या किया कि इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट किया और मुझे ये मिल गया। यस, एनी डाउट अप टू दिस स्टेप? ये क्लियर हो गया? नो सर। दिस यू विल गेट यूजिंग डिवाइस रूल, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। तो ये भी आपको सेपरेट 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने वाला है, डी आई बाय डी ए की वैल्यू। अभी इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ? नाउ दिस चलो ओके लेट मी जस्ट इसके आगे क्या होगा? इसके आगे और सॉल्व हो सकता है। सो डी आई बाय डी ए
क्योंकि अभी ये जो इंटीग्रल यहाँ पे आ रहा है ये ट्रिवियल इंटीग्रल है, सो आई कैन सॉल्व दिस इंटीग्रल। तो क्या मिलेगा मुझे बोलो, e⁻a+1। अभी मुझे विद रिस्पेक्ट टू dx इसका इंटीग्रेशन लेना है। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट इंटीग्रल? पहले तो वो एज इट इज आएगा। यस, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस? व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस? डिवाइड बाय माइनस ऑफ a+1। सो मतलब नीचे आएगा का इंटीग्रेशन जो एज इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? जब आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो तो नीचे मुझे क्या लेना है? डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x ना? yes sir। Okay. And then your limits are from 0 to infinity, and then you will get di by dA is equal to, if I put upper limit, e⁻∞ क्या आता है? 0। and for lower limit माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, you will get this। दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अभी मैं आपको ना प्रॉपर प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इट विल टेक सम टाइम। ओके, क्या था फिर से सुनो। आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और मैंने आपको क्या बोला कि डिवाइस भी एक ऐसा थ्योरम है जहाँ यूजिंग दैट यू कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन। बट जैसे आपके पास इंटीग्रल फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है, दैट बिकम अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, आपको इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो अगर इन सारे स्टेटमेंट को मैं कंबाइन करता हूं तो एट द एंड मेरा स्टेटमेंट क्या बन जाता है? डिवाइस रूल का यूज करके मैं इंटीग्रल सॉल्व कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व दी गिवन इंटीग्रल्स। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे करना है। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा? टू अप्लाई द डिवाइस रूल आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस इंटीग्रल फंक्शन बाय सम वेरिएबल। ओके, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एज दिस इंटीग्रेशन इज देयर विद रिस्पेक्ट टू x, सो अदर देन x यहाँ पे एक ही वेरिएबल है a, सो डिनोट दिस इंटीग्रल बाय i ऑफ a। नाउ अप्लाई दी डिवाइस रूल, सो डिफरेंशिएट i विद रिस्पेक्ट टू a, तो उसका फॉर्मूला क्या है? जस्ट रिप्लेस दिस फंक्शन बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू a। तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएट करो। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो x कैंसिल होगा एंड यू विल गेट दिस। ठीक है, अभी ये ट्रिवियल इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, e⁻1 + ax dx। सो यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल रेगुलर। आपका 12th का जो इंटीग्रेशन है वैसे इसको सॉल्व करना है, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस इंटीग्रल यू विल गेट द वैल्यू एज 1/1 + a। सो फाइनली फ्रॉम डिवाइस रूल, वही मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस स्टेप के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू a कीपिंग x कांस्टेंट, एंड इस स्टेप के लिए मुझे इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग a कांस्टेंट। तो एक ही केस में आपका रोल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत है, आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करो, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ओके, एंड फाइनली हियर यू विल गेट दिस। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, सो डोंट वरी। ठीक है, तो जितना भी 60-70% भी समझ में आ जाता है, इट इज़ इनफ। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाउ आई गेट di by dA इज इक्वल टू 1/1 + a। यहाँ तक क्लियर Yes, है? sir. ओके, अभी इसके आगे आपको क्या करना है? हमने क्या किया था? गिवन इंटीग्रल को i ऑफ a से डिनोट किया था। आई थिंक इट इज 0 to infinity e⁻x अपॉन x 1 - e⁻x। ये आपका गिवन इंटीग्रल था। हमने गिवन इंटीग्रल को i से डिनोट किया था। तो अगर मैं आपको ये मतलब इफ आई टेल यू दिस कि फाइंड और इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आप इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करो, इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? आई की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आई इज नथिंग बट जस्ट सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि अगर आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, आपको ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इन टर्म्स ऑफ ए, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाई? क्यों मुझे सॉल्व करना है? क्योंकि मुझे आई की वैल्यू चाहिए। आई की वैल्यू क्या है? बेसिकली इंटीग्रल की वैल्यू है। ठीक है, तो इंटीग्रल को सॉल्व करना इज नथिंग बट आई की वैल्यू कैलकुलेट करना। आई की वैल्यू कैलकुलेट करना इज नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। नाउ लेट अस सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे करना है बोलो? हाउ यू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? कौन से मेथड से करोगे? ये आपने लर्न किया है ऑलरेडी। हाउ यू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? Tell me quickly, how you solve this differential equation?
आपने डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक लर्न किया है की नाही? यस. सर आता ते डीएला राईट साईडला घ्यायचं. त्याला काय म्हणतात? Variable separable. Variable separation. It's called as variable separable form. Just one minute. ठीक है, दैट इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. एंड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का सिंपल मीनिंग क्या है? अगर वहाँ पे dy बाय dx का टर्म है ना, ठीक है, तो आपको dy के कोएफिशिएंट में y का टर्म एडजस्ट करना है एंड dx के कोएफिशिएंट में x का टर्म एडजस्ट करना है. देन यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन. दिस इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ठीक है, वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ dy टू बी फंक्शन ऑफ y, वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ dx टू बी फंक्शन ऑफ x, देन टेक द इंटीग्रेशन. दैट इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो यहाँ पे हियर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy बाय dA. तो आपको सिंपली क्या करना है? dy का कोएफिशिएंट i में कन्वर्ट करना है, dA का कोएफिशिएंट a में कन्वर्ट करना है. बट यहाँ पे i का टर्म है ही नहीं. ओके, तो हम क्या करेंगे? विल कीप दिस dy एज इट इज एंड देन शिफ्ट दिस d ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है, and you can directly check. So here you will get the coefficient of di to be function of i. है ही नहीं मतलब वो क्या होगा? constant 1 ही होगा, है ना? As there is no term of I, so that constant or that variable must be 1, and the coefficient of dA must be function of a. So now this is my variable separable form. कैसे आइडेंटिफाई करना है? dy का y में, dx का x में, और ये एक साइड में, ये एक साइड में. तो यहाँ पे भी आप देखो dy का i में, okay, as there is no term of I, so we have to directly assume it as 1, and dA का a में. Now this is become variable separable form. On integrating you will get the solution. So on integrating you will get derivative of I is equal to 1 upon 1 plus a dA. तो क्या होगा? बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा? So I will explain only for 1 minute. इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा? I ना, करेक्ट ना? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा. हाँ, और इसका क्या आएगा? log of 1 plus a. Is this correct? या और मिस हो रहा है? क्या मिस हो रहा है यहाँ पे? कांस्टेंट प्लस c. कांस्टेंट आर्बिट्री कॉन्स्ट. जब आप इंटीग्रेट करते हो, अब ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, लिमिट नहीं है, तो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना होगा. लेट अस कंसीडर एज कैपिटल ए. तो मुझे यहाँ पे कैपिटल ए ऐड करना होगा. अभी आप देखो, i की वैल्यू इज नथिंग बट i ऑफ a की वैल्यू. ये बस नोटेशन है. सो हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ i ऑफ a which is equal to log of 1 plus a plus capital A. Now this is your final answer. ये इंटीग्रल की वैल्यू है. इस इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? log of 1 plus a plus capital A. But what is the problem with this final solution? क्या प्रॉब्लम इस फाइनल सॉल्यूशन में? क्या प्रॉब्लम इस फाइनल सॉल्यूशन में? Constant. It contain the arbitrary constant and you want your answer constant. you want your answer which is free from this arbitrary constant. तो आपने शायद ना डिफरेंशियल इक्वेशन का जब यूनिट लर्न किया था ना, तो उसके बाद एक यूनिट था दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. उस टाइम पे जहाँ पे भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आ रहे थे ना, ओके, आपने उसको कैसे एलिमिनेट किया था? कैन एनीवन टेल मी दैट? व्हाट इज द अप्रोच टू एलिमिनेट दिस आर्बिट्री कांस्टेंट? Putting limits. यूजिंग व्हाट? Limits. नहीं, टेल मी द प्रॉपर वर्ड. आपने क्या यूज किया था जिससे एक ही वैल्यू आपको मिल रही थी डायरेक्टली? यूजिंग विच कंडीशन? ये वर्ड कभी सुना है क्या? इनिशियल कंडीशन. तो सारे उन एप्लीकेशंस में एक इनिशियल कंडीशन थी. अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का है सो एट इनिशियल टाइम, है ना, करंट इज 0, चार्ज इज 0, ये आपकी इनिशियल कंडीशन थी. अगर रेक्टिलिनियर का प्रॉब्लम है, ओके, एट इनिशियल टाइम यू आर एट 0 डिस्टेंस x इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज 0, है ना. वो सारे दोज ऑल आर एक्चुअली द इनिशियल कंडीशन एंड यूजिंग इनिशियल कंडीशंस ओनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल A. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज मीन बाय इनिशियल कंडीशन. इनिशियल कंडीशन का मीनिंग क्या होता है? I ऑफ A के ऊपर मुझे एक इनिशियल कंडीशन चाहिए. मीन्स व्हाट? आई वांट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ A. पर्टिकुलर मतलब नंबर चाहिए मुझे, 7, 8, ये जैसे नंबर है वैसे. आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ A फॉर विच आई विल गेट अ पर्टिकुलर आंसर. ऐसी एक कंडीशन मुझे चाहिए. दिस इज नथिंग बट माई इनिशियल कंडीशन. आई ऑफ समथिंग लाइक से आई ऑफ 2 इक्वल टू 3, इट बिकम माई इनिशियल कंडीशन. एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर आंसर, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशन. सो नाउ यू टेल मी what I can assign for capital what I can assign here.
सो दैट मतलब जैसे अगर मैं a इक्वल टू 1 ले लेता हूँ तो मुझे डायरेक्टली आई ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से क्वेश्चन सुनो, व्हाट आई कैन असाइन फॉर व्हाट आई कैन असाइन फॉर a सो दैट आई विल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ i ऑफ a। कैन आई टेक अगर मैं a इक्वल टू 1 लेता हूँ तो i ऑफ 1 सॉल्व होगा क्या? यहाँ पे i ऑफ 1 मतलब a की वैल्यू 1 रखो, ये इजीली सॉल्व होगा क्या? सॉल्व होगा आगे जाके, सॉल्व होगा क्या? आई वांट डायरेक्ट आंसर, बस डायरेक्ट आंसर। सो टेल मी अ सिंपल वैल्यू ऑफ a जिससे ये इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी। 0 ये ही आपको डिफिकल्ट जाएगा, डिफिकल्ट भी नहीं बोलना, बट ये दिस यू विल गेट ओनली फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो आंसर इज करेक्ट। इफ आई असाइन a इक्वल टू 0 तो i ऑफ 0 की वैल्यू देखो क्या आएगी, i ऑफ 0 इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x अपॉन x, e रेज़ टू 0 आ जाएगा, एंड e रेज़ टू 0 क्या होता है 1, सो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। मतलब मुझे इंटीग्रल सॉल्व करने की जरूरत है क्या? वहाँ पे नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ऐसी वैल्यू चाहिए, ओके, बाय विच आई विल गेट दी डायरेक्ट वैल्यू फॉर दिस इंटीग्रल। मतलब मुझे इंटीग्रल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट वो आंसर मिल गया। सो आई हैव वन इनिशियल कंडीशन, व्हाट इज दैट i of 0 is equal to 0, and if I use this initial condition here, really sorry for the delay, if I use this initial condition here तो मुझे क्या मिलेगा? i of 0 a इक्वल टू 0 डालो इस पूरे इक्वेशन में, i of 0 इज इक्वल टू log 1 प्लस कैपिटल A। log 1 क्या होता है 0, i of 0 भी क्या है 0, so that gives me a equal to 0, and so your final answer। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? log ऑफ a प्लस 1, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 100% फ्रॉम यू, ठीक है। इतना भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी आइडिया आ जाती है ना, सो कल से मैं एक और बार इन डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आपका क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। आई नो क्योंकि इनिशियली थोड़े बहुत कन्फ्यूजन आपके रहेंगे कि कैसे स्विच करना है यहाँ से वहाँ से यहाँ, तो थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, बट कल के लेक्चर में शायद ये टॉपिक आपका और अच्छी तरीके से हो जाएगा। ओके, सो हियर विल स्टॉप टुडे एंड विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट, विल टेक सम एग्जांपल्स इन नेक्स्ट लेक्चर।